اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے گناہوں پہ اقرار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے. تو قرآن پاک کی آیت کی نص کیا ہے؟ جاؤک، کہ آپ کے پاس آئے. قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ آئے، آپ کے پاس آئے. جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے اللہ کے نبی اپنے اصحاب کرام کے لیے اور جن امت کے لوگوں سے گناہ ہوتے رہے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ معاف کرتا رہا. یہاں ذکر نبی کے پاس آنے کا ہے، نبی کی قبر پہ آنے کا نہیں. اور مولویوں نے کئی حکایتیں بدویوں کی مشہور کر رکھی ہے. میں ایک مولوی کی کیسٹ سن رہا ہوں، کہتا ایک بدو تھا، عربی تھا، وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا، یہی آیت پڑھی اور پھر کہا اللہ کے نبی میں بڑا گناہگار ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، میرے لیے اللہ سے معافی مانگو. نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس سے یہی مطلب نکلتا ہے. یہ کہہ کے وہ بدو چلا گیا. ایک صوفی صاحب کہتے ہیں میں قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے نبی نے مجھ سے کلام کیا کہ بھاگو اس عربی کو پکڑو، اس بدو کو پکڑو اور اس سے کہو کہ رسول نے تیرے لیے معافی مانگی اور اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ بنائی ہوئی من گھڑت جھوٹی روایت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مولویوں کی زبان پر اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق. پکارنا اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارا گویا آپ نے اسے معبود مان لیا. مدد کے لیے اگر پکارا، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارا گویا آپ نے اسے معبود مان لیا. مدد کے لیے اگر پکارا، ویسے پکار سکتے ہیں، ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، لیکن ہم المدد یا رسول اللہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے. مدد کے لیے پکارنا منع ہے، صرف پکارنے میں کوئی حرج نہیں. اور قرآن نے پھر حکم دیا ہم کو. اب آئیے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ جب تم پریشان ہو جاؤ، گناہوں کے جم میں گفیر میں گھر جاؤ، کوئی تمہیں راستہ نظر نہ آئے اور تمہیں پھر پچھتاوا ہو اپنے آپ پر، تمہیں احساس ہو کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے، ہم جہنم کے راستے پہ چل پڑے تھے، اب اللہ نے تمہیں توفیق دی، لوٹنا ہے جنت کی طرف، تو کیا کرو؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا مسجد میں جاؤ دعا کرو. غور سے سنیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہ کر لیا ہے جاؤ مولانا کے پاس جاؤ کو مولانا صاحب کچھ وظیفہ بتا دیجئے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوب نمازیں پڑھنا شروع کر دو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری مسجد میں جاؤ اور مجھ سے خوب گڑ گڑا کے دعا کرو، بلکہ توبہ چاہتے ہو تو کیا کرو؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا کیا کرے؟ گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں انسان، جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جانا چاہتا ہے. بتائے قرآن کیا راستہ ہے جنت کی طرف جانے کا؟ تو قرآن پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 64 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت، اے میرے بندو اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو کیا کرو؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے بندو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، میرے نبی کے پاس آؤ اور کیا کرو؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو، واستغفر لهم الرسول، اور میرا رسول میرا محبوب اگر تمہارے لیے شفاعت کر لے، تمہارا شفیع بن جائے، لواجد اللہ تواب الرحیم، تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. توبہ قبول کرنے کی شرط کیا رکھی اللہ نے؟ میں توبہ تب قبول کروں گا جب میرا محبوب کی بارگاہ میں آؤ، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں آنے سے بھی کام نہیں چلے گا، کام تب مکمل ہوگا جب میرا محبوب تم پر رحم کرے، اور رحم یہ کرے کہ تمہارا شفیع بن جائے، تمہاری شفاعت کرے اور تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، پروردگار یہ تیرا گناہگار بندہ، یہ میرا گناہگار امتی میرے پاس آیا ہے، مجھے شفیع بناتا ہے، میں اس کا شفیع بن کر، اس کا وسیلہ بن کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو معاف کر دے. تو اللہ فرماتا ہے لواجد اللہ تواب الرحیم، تو تم اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ. یہ ہے قرآن عظیم کی منشا. اور اس آیت کریمہ سے 2 باتیں 3 باتیں بلکہ جتنے آپ نکات نکالے میں سمجھتا ہوں کم ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو گناہگاروں کو بخشواتے ہیں.
दूसरा तो ये मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों को हुक्म दिया कि गुनाह करो तो मेरे नबी के पास आओ। तो जो लोग कहते हैं कि मज़ारों पे नहीं जाना चाहिए, कब्र पर नहीं जाना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि हज करने जाते हो तो हज ही करो, और जो हज के साथ नबी की कब्र पर गया उसने अपने हज को ज़ाया कर दिया, जैसे अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा, इब्न तैमिया ने लिखा। तो मालूम हो गया कि इनका अकीदा बातिल है, कुरान के खिलाफ है। कुरान कह रहा है कि नहीं नहीं, जब तक तुम मेरे महबूब की बारगाह में आओगे नहीं, मेरे महबूब की बारगाह में गिड़गिड़ाओगे नहीं, मैं तुम्हारी तौबा हरगिज हरगिज कबूल करने वाला नहीं। मालूम हुआ कि मज़ार रसूल पर जाने का भी हुक्म दिया जा रहा है, नबी के पास जाने का भी हुक्म दिया जा रहा है, नबी को शफी बनाने का भी हुक्म दिया जा रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि अगर मेरा महबूब शफी ना होता तो फिर तुम अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला ना पाते। मैं तौबा कबूल करने वाला इसलिए हूं, मैं तौबा इसलिए कबूल कर रहा हूं कि मेरे महबूब ने तुम्हारी शफात कर ली है, मेरे महबूब ने तुम्हारे लिए अपने हाथों को बुलंद कर दिया है। अगर तुम हाथ बुलंद करते, तुम्हारे गुनाहगार हाथों को ठुकरा दिया जाता, तुम्हारी दुआ को रद्द कर दिया जाता। मगर मेरा महबूब मासूम है, मेरा महबूब है, मैं इसकी रजा चाहता हूं, वो मेरी रजा चाहता है। जिसमें इसकी रजा उसमें मेरी रजा, इसने तुम्हारे लिए हाथ उठाया है, मेरी रजा यह है कि इसकी रजा के तहत तुम्हें माफ कर दूं। जाओ, तुम्हें माफ कर दिया गया। मगर कुरान की इस नस के बाद भी कुछ लोगों के हाथ में अच्छे नहीं है। उनका दावा है कि साहब किस्सों से बात करते हैं बरेलवी लोग। अब जब हमने कुरान पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने तावीलें निकाली, कहा कि भाई देखिए कुरान में जो आया है कि नबी की बारगाह में जाके मांगो, ये जब नबी हयात थे ये उस वक्त के लिए है, नबी के विसाल के बाद नहीं जा सकते कब्र पर। कुरान में आया नबी के पास जाओ, जाऊक लफ्ज आया है, नबी के पास जाओ, कब्र के पास जाओ नहीं आया है। और ये एतराज गैर मुकल्लिदीन के एक बहुत बड़े अल्लामा जो अभी इस वक्त कहलाते हैं मौलवी तौसीफ उर रहमान ने सऊदी अरबिया से बयान किया। फिर यही तफसीर अल वसीला में, किताबुल वसीला में इब्न तैमिया ने लिखा। इब्न तैमिया ने जो इनके अब्बा ने लिख दिया, सारी नस्ल औलादे उसी कौल को दोहराते रहती है। अब आइए जरा तौसीफ उर रहमान की ज़बानी सुन लीजिए कि इस आयत के बारे में उनका कहना क्या है। सुने इसको जरा। है फिर उसे एहसास होता है अपनी गलती पर, वो आकर अल्लाह से माफी मांगे और अल्लाह के रसूल के पास आकर अपनी गलती के इकरार करे। ये उसी वक्त मुमकिन था जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। जब अल्लाह के नबी फौत हो गए, अब वो अल्लाह से माफी मांगे, अपने उस जुल्म का इकरार करे और आइंदा न करने का अहद करे। तो अपने इस गुनाह के बारे में मालिक उससे कहता है, जो तू गुनाह करके आया है सुन, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाओगे। कुछ लोग इस आयत से ये गलत इस्तेमाल भी करते हैं कि देखा जी कुरान पाक में है कि जब आप गुनाह कर बैठो, जुल्म कर बैठो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आओ। तो अब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे जाकर आपसे माफी का सवाल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे खड़े होकर अपने गुनाहों पे इकरार करते हैं और फिर कहते हैं अल्लाह के नबी आप हमसे आप हमारे लिए अल्लाह से माफी मांगे। तो कुरान पाक की आयत की नस क्या है? जाऊक, कि आपके पास आए। कुरान पाक में ये नहीं है कि आपकी कब्र पे आए, आपके पास आए। जब तक अल्लाह के नबी जिंदा रहे, अल्लाह के नबी अपने असहाबे कराम के लिए और जिन उम्मत के लोगों से गुनाह होते रहे उनके लिए अल्लाह से माफी मांगते रहे, अल्लाह माफ करता रहा। यहां जिक्र नबी के पास आने का है, नबी की कब्र पे आने का नहीं। और सुन लिया आपने कितना क्लियर उन्होंने कहा, कुरान में कहा नबी के पास और नबी की कब्र के पास आने का जिक्र नहीं है। देखिए कैसे धोखा देते हैं ये लोग। इस पर मैं दो बातें अर्ज करता हूं बड़े अदब के साथ। पहली बात कि नबी की हयात में ही जाओ, नबी के विसाल के बाद मत जाओ। ये कुरान अजीम की किस तफसीर में आया है? भाई तुम्हारे यहां तो कयास जायज नहीं है, तुम कौन होते हो कुरान पे कयास करो? एक चीज। दूसरा, अल्लाह के रसूल की हदीस पाक है बुखारी शरीफ में, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने कुरान में अपनी मर्जी चलाई उसने तहकीक अपना ठिकाना जहन्नम में बना दिया। तुम कौन होते हो कुरान में अपनी मर्जी दाखिल करोगे? कुरान में तो कहा नहीं अल्लाह ने कि देखो नबी के जिंदा है तब तक जाना, जब नबी का इंतकाल हो जाए फिर मत जाना। कुरान में नहीं है। ये तुमने ये मंतिक लाई कहां से, किस किताब से लाई? तुम अहले हदीस हो, तुम्हें चाहिए था एक कोई हदीस पेश करते। तुम अपने आप को अहले हदीस बोलते हो
اور اگر سلفی بولتے ہو تو، اور اگر ہو بھی سلفی تو کم سے کم سلف صالح میں سے کسی کا قول ہی پیش کر دیتے. یہ دیکھو فلاں امام نے لکھا کہ بھائی رسول کی زندگی میں جانا چاہیے، رسول کے بعد نہیں جا سکتے، قبر پہ نہیں جا سکتے. تفصیل بل رائے کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنایا کہ نہیں بنایا؟ پہلی بات. دوسری بات، جب مسلمان گناہ کرتے تھے بقول توصیف الرحمان صاحب کے تو وہ نبی کے پاس جاتے تھے مغفرت کے لیے. اب وصال کے بعد نہیں جا سکتے، یعنی جب نبی زندہ تب گئے تو توحید، اور نبی کے وصال کے بعد گئے تو شرک. تو گویا ان کے نزدیک زندہ سے مانگنا غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہے، مرنے کے بعد غیر اللہ بن گیا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے جو زندہ ہے وہ بھی غیر اللہ، اور جو وصال فرما گیا وہ بھی غیر اللہ. تو یا تو پہلے یہ طے کر لو کہ زندوں سے مانگنا جائز ہے اور مردوں سے مانگنا جائز نہیں، یا پہلے یہ کر لو کہ غیر اللہ میں تمہارے ہاں سب غیر اللہ میں، یا یہ تخصیص کر لو کہ نہیں صاحب غیر اللہ میں ہم زندوں کو نہیں مانتے، مردوں کو ہی مانتے. جب زندہ ہے تو ہم اللہ مانتے ہیں اس کو. تو یعنی نبی جب زندہ تھے تو سارا خدائی ڈپارٹمنٹ اللہ نے نبی کو دے دیا، جاؤ تم ہی بخشواتے رہو. اور جیسی نبی وصال ہو گئے تو اللہ نے کہا خدائی ختم، اب ڈپارٹمنٹ میرا ہے، میرے پاس آئے، تمہارے پاس نہیں جا سکتے، تم تو مردہ ہو گئے معاذ اللہ. یہ منطق آپ نے کہاں سے لائی؟ اور تیسرا جواب، دنیا قیامت تک یہ غیر مقلدین سے میرا، قیامت کی آخری گھڑی تک میری نسلوں کو جواب دینا، اگر میں نہ ملوں تمہاری پوری نسلیں کھپ جائیں گی قیامت تک، اور تم یہ جواب نہیں لا سکتے. جو تیسرا سوال کر رہا ہوں میں، یہ آیت کریمہ قرآن کی ہے کہ نبی تم گناہ کرو تو نبی کے پاس آؤ. مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس آیت کو کس آیت نے منسوخ کر دیا ہے؟ وہ کون سی دلیل ہے کہ آیت منسوخ ہو گئی، اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا؟ وہ آیت بتاؤ. تم کون ہوتے قرآن کی آیت کو منسوخ کرنے والے؟ قرآن کا کوئی بھی کلام قیامت تک کے لیے جب تک اس کے منسوخ کی آیت خود قرآن میں موجود نہ ہو، اگر ان کی جاہلانہ دلیل مان لی جائے تو کل آپ لوگ نماز پڑھنا سب چھوڑ دیجیے. غیر مقلدین سے کہہ رہا ہوں، سنی آپ مت چھوڑنا بھائی. ہمارے نزدیک تو حکم موجود ہے، ان کے نزدیک انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دینا. اب پوچھے بھائی کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کہنا واقعی الصلاۃ قرآن میں جو آیا وہ نبی کے لیے آیا ہے، نبی کے بعد ہمارے لیے تھوڑی آیا. خطاب تو نبی اور ایمان والوں صحابہ سے، ہم سے کہاں ہے؟ تو کہا جائے گا بیوقوف ہے تو، پاگل آدمی ہے. قرآن میں جو حکم آ گیا وہ قیامت تک کے لیے ہے. اگر یہ حکم آیا نبی کے زمانے میں، نبی پر یہ وحی آئی کہ اے ایمان والو، اے لوگو، اگر تم جانوں پہ ظلم کرو تو نبی کے پاس آؤ، تو یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے. ورنہ تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس آیت کو کس آیت نے منسوخ کیا ہے، اور وہ قیامت تک تم ثابت نہیں کر سکتے. اب آئیے یہ آیت منسوخ نہیں، اس کی دلیل دیتا ہوں اور پھر اتنے حوالے سناؤں گا کہ ان کو بھی اپنے اہل حدیث کہنے پہ شرم آئیں گی کہ ہم نے یار یہ نام کہاں سے چرا لیا ہے، ہم تو ہے ہی نہیں وہ کام، منصب کے لائق ہی نہیں ہے. آئیے آپ کو اسکین پیج بھی دکھاتا ہوں، ہاتھ میں کتاب بھی موجود ہے، تفسیر نصفی، تفسیر مدارک جس کو بولتے ہیں، یہ ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، جلد نمبر 1، 4 جلدوں میں آتی ہے. حضرت علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی علیہ رحمہ کی یہ قرآن کی تفسیر ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن کی تفسیر ہے. آئیے سنیں اس تفسیر میں کیا ہے. اس کا صفحہ جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 234، سورہ نساء پارہ نمبر 5، اور اس کی وہی آیت کریمہ آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. اسی آیت کی تفسیر میں امام نصفی، امام تفسیر مدارک میں کیا لکھتے ہیں ذرا سنیں. کہتے ہیں قیلا جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام. کہتے ہیں روایت بیان کی گئی، اور یہ روایت پھر بعد میں بتاؤں گا کن کن کی سندوں سے ہے. کہتے ہیں کہ روایت بیان کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عربی آپ کی قبر پر آیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک عربی قبر پر آیا رسول اللہ کی. کب آیا؟ وصال نبی کے بعد. اور توصیف الرحمان کہتے ہیں وصال نبی کے بعد نہیں جا سکتے، اور حدیث بتا رہی ہے کہ وصال نبی کے بعد آیا. اس کے راوی حضرت علی ہے اس حدیث کے، بعد میں سند پہ بات کروں گا. کہتے ہیں کہ قیلا، کہا، روایت کی گئی، بیان کیا گیا، جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام فرما بنفسہ علی قبرہ. اور اس عربی نے، اس عرب کے شخص نے اپنے جسم کو قبر رسول پر گرا دیا.
वहसा मिन तुराबिही अला रासिही, और कब्र नबी की मिट्टी को लेता अपने सर पे डालता, और रसूलुल्लाह की कब्र की मिट्टी को लेता अपने सर पे डालता। कुल तो, और उसने कहा, वकाल, और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल। या के साथ कह रहा है, निदा कर रहा है, पुकार रहा है नबी को। या हुर्फे निदा है, इसमें निदा दे रहा है, इस्तिगासा कर रहा है। या इस्तिगासा के लिए आता है, मदद के लिए आता है, नबी से मदद तलब कर रहा है। कहता है या रसूल अल्लाह, कुल तो आपने कहा, फसमअना, हमने सुना, वकाना फीमा उनजिला इलई, और जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर कुरान अजीम में नाजिल किया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, वही आयत करीमा पढ़ी उसने कि जैसा कुरान अल्लाह ने आप पर नाजिल किया अल्लाह के रसूल, और उसमें फरमाया कि ऐ लोगों, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो तो मेरे नबी के पास आओ। अल आयत, यानी उसने आखिरी आयत तक पढ़ी, वक़द ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मैंने बहुत गुनाह किए। वजीतुका अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ंबी, और मैं अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। फस्तगफिरुल्लाह मिन रब्बी, आप भी मेरे लिए अल्लाह से इस्तगफार कीजिए। मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार के लिए आपकी बारगाह में आया हूँ, आप मेरी शफाअत कीजिए, आप मेरी सिफारिश कीजिए। रावी हदीस कहते हैं, फानुदिया मिन कब्रिही, अल्लाह के रसूल की कब्र से ये आवाज आई, सरकार मुबारक की, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से आवाज आई, क्या? कद गफरा लका, जा तुझे बख्श दिया गया है। ये हदीस पोल खोल देती है इनके अकीदे की। ये कहते हैं कि बाद विसाल के बाद नबी से नहीं मांगा जा सकता, कब्र पर आने से मना किया गया। और हदीस बता रही है कि ना सिर्फ कब्र पर आ रहा है वो सहाबी, रावी हजरत अली, ये भी सहाबी, और वो कहते हैं कि वो आने वाला अरबी, तो वो नबी के जमाने में आया तो वो भी सहाबी था, या सहाबी नहीं तो कम से कम ताबई जरूर था। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 3 दौर की मैं जमानत लेता हूँ, सबसे बेहतर मेरा जमाना, फिर उसके बाद वाला जमाना, फिर उसके बाद वाला जमाना, ये सबसे बेहतर जमाना खैरुल कुरून फरमाया। उस जमाने के जितने मुसलमान हैं, ताबई तबे ताबई, सबके बारे में इत्तेफाक कि जो ईमान पर इंतकाल कर गया वो मोमिन है, वो जन्नती है। 3 जमाने के रसूल ने जमानत ली, तो ये या तो सहाबी है या ताबई है, रावी अली है। होना तो ये चाहिए था कि अगर कब्र रसूल पर आना शिरक था, रसूल से इस्तिगासा करना शिरक था, रसूल से मांगना शिरक था, तो होना ही चाहिए था हजरत अली कहते, अरे नबी से मांगने आ गया, तुझे मालूम नहीं नबी के विसाल के बाद ये आयत मनसूख हो गई है, अल्लाह से मांग, कब्र पे क्या मांगने आया है? अच्छा चलो, अली को नहीं मालूम था मसला, और भी साहबा को नहीं मालूम था, उसको भी नहीं मालूम था वो अरबी को, कम से कम रसूल की कब्र से तो आवाज ये आती, मुशरिक हो गया है तू, जा तौबा कर, मैं तो मरकर मिट्टी में मिल गया हूं माज़अल्लाह, ये नहीं आवाज आती। बल्कि क्या, फानुदिया मिन कब्रिही, हदीस के अल्फाज, कब्र रसूल से आवाज आई, कद गफरा लका, जा तुझे बख्श दिया गया है। तो मालूम हुआ जो रोजे रसूल पर आता है और नबी से इस्तिगासा करता है वो मुशरिक काफिर नहीं होता, बख्श दिया जाता है। मगर बहुत ताज्जुब करोगे यार, इंशाअल्लाह बॉम्बे की जमीन पे एक बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम होगा किसी जमाने में, उसका नाम होगा झूठे वहाबी। ये सब उन्वान मेरे जहनों में महफूज है, इंशाअल्लाह वक्तन फोक्तन आते रहेंगे। इनसे बड़ा झूठा मैंने नहीं देखा भाई, इबलीस भी शर्माता है इनके झूठ के सामने। खुदा की कसम कह रहा हूं, मिंबर पे बैठा हूं। अब क्या किया इन्होंने, देखा तफसीर में मौजूद है, वाक़े में मौजूद है, और एक और वाक़या मुफस्सिरीन ने लिखा इसी ताल्लुक से, हज़रत इमाम उदबी। अब सुन ले इमाम उदबी कौन है, अस्मा और रिजाल की किताब पढ़े तो पता चले, नाम अहले हदीस है, पढ़ते कुछ नहीं है, पढ़ते सिर्फ अपने मौलाना की किताब। इमाम उदबी हज़रत इमाम शाफई के उस्ताद है। अगर इमाम उदबी मुशरिक तो इमाम शाफई मुशरिक। इमाम उदबी कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह के रोजे पर हाजिर था, एक अरबी आया और अल्लाह के रसूल के रोजे की जालियों से लिपट गया, सरकार के कब्र से लिपट गया, उस वक्त जाली नहीं थी, कब्र से लिपट गया और कहा, या रसूलुल्लाह आपका रब कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ, यही आयत पढ़ी,
اللہ کے نبی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، میں آپ سے معافی طلب کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادبی کہتے وہ خوب روتا رہا، اس نے 4 اشعار کہے رسول کی شان میں، پھر وہ چلا گیا روتے ہوئے۔ حضرت امام ادبی کہتے مجھے نیند کا غلبہ آیا، میں سو گیا، میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ادبی جاؤ اس کو بشارت دے دو کہ اس کو بخش دیا گیا ہے۔ یہ بھی واقعہ ہے، مگر یہ اپنے آپ کو غیر مقلد کہنے والے کتابوں میں نظر نہیں ہے، اور دعوے کیا ہے سنیے۔ اب توصیف الرحمان صاحب کا ذرا یہ دعویٰ سن لیں آپ۔ بدویوں نے کئی حکایتیں بدویوں کی مشہور کر رکھی ہے۔ میں ایک مولوی کی کیسٹ سن رہا ہوں، کہتا ایک بدو تھا، عربی تھا، وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا، یہی آیت پڑھی اور پھر کہا اللہ کے نبی میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، میرے لیے اللہ سے معافی مانگو، میں یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس سے یہی مطلب نکلتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بدو چلا گیا۔ ایک صوفی صاحب کہتے ہیں میں قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے نبی نے مجھ سے کلام کیا کہ بھاگو اس عربی کو پکڑو، اس بدو کو پکڑو اور اس سے کہو کہ رسول نے تیرے لیے معافی مانگی اور اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ بنائی ہوئی من گھڑت جھوٹی روایت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مولویوں کی زبان پر اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پہ آنے والوں کے حالات کو جانتے ہوتے، ان کی باتیں سنتے ہوتے، ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہوتے، ان کے لیے درخواستیں اللہ کے دربار میں پیش کرتے، سن سکتے، حالات دنیا کو جانتے، تو جب علی اور عائشہ کی جنگ ہونے لگی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے دلوں میں آ کر دونوں کی صلح کیوں نہیں کروا دی؟ بعد میں دوں گا بعد والے کا۔ بہرحال پہلے اتنا سن لیا آپ نے، یہ واقعہ من گھڑت ہے، مولویوں نے پیٹ کے دھندے کے لیے یہ جھوٹی حدیث من گھڑت گڑھ لی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پیٹ کے دھندے کے لیے تو مولویوں نے گڑھی، شاید آپ نے بھی سعودیہ کو خوش کرنے کے لیے پیٹ کے دھندے کے لیے اس روایت کا انکار کر دیا ہے۔ دھندا تو آپ کا معلوم ہو رہا ہے بھائی، اگر ہمارا پیٹ کا دھندا ہوتا تو ہم کتاب لے کے نہیں بتاتے، تو بغیر کتاب کی اپنے مطلب گھر کی پراپرٹی دین کو سمجھ کے جس چاہے روایت کو چاہے ضعیف بول دے، جس روایت کو چاہے موضوع بول دے، جس روایت کو چاہے من گھڑت بول دے، تمہارے گھر کا دین ہے، جس کو چاہو تم بول دو، تم خود محدث ہو، تم خود مجتہد ہو، نہ تم امام مانتے ہو، نہ حدیث مانتے ہو، نہ رسول کا قول مانتے ہو، تم مانتے کچھ نہیں ہو، تم اپنی طبیعت مانتے ہو۔ چلیے اب آئینہ دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ غیر مقلد جاہل فرقے کا نام ہے، یہ میرے پورے تقریروں میں یہی موضوع رہتا ہے، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ عوام کے ذہن میں اچھی طرح بٹھا دوں، اور آپ خدا کی قسم یہ بٹھا لیجئے، ان کے جھبے سے، ان کے قال رسول اللہ کا وہ حلقوں سے نکالتے ہیں نا قالا، اس کو دیکھ کر کبھی معروف مت ہو کہ بڑے علم کے جاننے والے ہیں۔ ارے بھائی ہم اجمی، ہماری عربی اجمی ہی صحیح ضرور، مگر تمہارا عربی لہجہ جو ہے نا جاہلانہ لہجہ، بدوی لہجہ اپنے پاس رکھو، اور یہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ ان کو خود اپنے گھر کی خبر نہیں معلوم۔ ان کے بہت بڑے علامہ ابن کثیر، ابن تیمیہ کے شاگرد، اور تفسیر قرآن میں یہ سب سے معتبر تفسیر ابن کثیر کی تفسیر کو مانتے ہیں۔ آئیے اس واقعے کو ابن کثیر نے ہی لکھا ہے، لیجئے، اور چھپی بھی سعودیہ سے ہے۔ بغل میں سعودیہ میں بیٹھے ان کو خود نہ تفسیر پہ نظر ہے نہ حدیث پہ نظر ہے۔ سعودیہ سے چھپی ہے قرآن عظیم کی تفسیر، تفسیر ابن کثیر۔ اس میں ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اسی آیت کی تفسیر میں لکھا وَقَدْ ذَكَرَ جَمَاعَتِهِ مِنْهُمْ الشیخ ابو منصور صباغ فی کتابہ، سند کے ساتھ کہتے تحقیق کے ساتھ، وقد تحقیق کے ساتھ، ذکر ذکر کیا، جماعتہ منہم الشیخ، ایک کثیر جماعت نے جن میں شیخ ابو منصور صباغ بھی ہے۔ اور پھر وہ پوری روایت لکھی، اور اس کے بعد وہ پوری روایت لکھے قالا کنتو جلسن عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء عربی فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ، سمعت اللہ یقول ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤوا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما وقد جئتک مستغفرا لذنبی مشفعا بک الی ربی۔ وہ پوری روایت انہوں نے وہی بیان کی، اور جو میں ابھی کا ترجمہ سنا چکا ہوں کہ ایک عربی آیا اور اس نے کی، یہ ابن کثیر نے خود لکھا۔ اب آگے ذرا حوالے سنیں کہ اس واقعے کو کتنے ائمہ نے لکھا۔
और तौसीफ रहमान ने साफ कह दिया कि ये मन घड़त रिवायत है। अब जरा हवाले आप गिने, किताबों का बताने की जिम्मेदारी मेरी, और उसके सफात और उसकी जिल्द नंबर मैं बताता हूं, गिनते जाएं कितने हवाले हैं। इस हदीस को सबसे पहले मैंने बताया किसने लिखा, तफसीर मदारिक में इमाम नसफी ने जिल्द नंबर 1 सफा 234 पर, इब्ने कसीर ने तफसीर कुरान के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा 461 सूरह निसा आयत 64 की तफसीर में, इब्ने कसीर के अलावा इमाम बहकी ने शोएबुल ईमान के अंदर जिल्द नंबर 3 सफा 95 हदीस नंबर 7187, इमाम इब्ने कदामा हम्बली ने अल मुगनियों के अंदर जिल्द नंबर 3 सफा 557, इमाम कुर्तबी ने अल जामिउल अहकामिल कुरान, ये कुरान की तफसीर जिसको सऊदिया नहीं छापा है, जिल्द नंबर 5 सफा 265, हज़रत इमाम साले सुबुलुल हुदा व रिशाद जिल्द नंबर 12 सफा 380, इमाम समहोदी ने वफा उल वफा जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 1361, इमाम इस बिन जामा हिदायतुस सालिकीन सालिक के अंदर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 1383, इमाम काजी अयाज ने शिफा किताब शिफा के अंदर सफा नंबर 41 जिल्द नंबर 2, इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने तफसीर जलालैन जो मदारिस में पढ़ाई जाती है, मौलियों को पढ़ाई जाती है, कोर्स में दाखिल है तफसीर जलालैन, इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने तफसीर जलालैन सफा 80 पर इसी आयत की तफसीर में, इमाम इब्न नज्जार ने अद-दरारुस समीना सफा 224, इमाम शहाबुद्दीन खफाजी ने नसीमुर रियाद शरह शिफा काजी अयाज जिल्द नंबर 3 सफा 398, इमाम इब्ने असाकिर ने अत-तहाफुज़ ज़ाहिर सफा नंबर 170, इमाम कस्तलानी ने अल मुहिबुल लदुनिया के अंदर, इमाम नववी ने अल अस्कार के अंदर, और एक आखिरी किताब ये जो हाथ में इस वक्त मौजूद है, आपको इसका स्कैन पेज में सामने मॉनिटर पे दिखा रहा हूँ, मिसबाहुज़ ज़लाम, किसकी लिखी हुई है, हज़रत इमाम अल्लामा इमाम मोहम्मद बिन मूसा अल मराकशी, जिनकी विलादत पैदाइश 606 हिजरी, इनका विसाल इनका इंतकाल 683 हिजरी, पूरी इसी हदीस पर उन्होंने सनद के ऊपर किताब लिख दी है पूरी। इसमें वो तमाम असानीद, वो तमाम सनदों का जिक्र कर दिया और इस पर पूरी बहस डाल दी उसमें कि यह हदीस सही है अपने इस्नाद के एतबार से, मतन के एतबार से, हालात के एतबार से, और इसकी सनदें किन किन लोगों से आई है, कितनी इसकी इस्नाद है, इस इस्नाद के ताल्लुक से पूरी एक किताब ही मिसबाहुज़ ज़लाम लिख दी। कितनी किताबों के हवाले दिया है मालूम है, गिने आपने, गिना क्या किसी ने जी, कितने हवाले दिया, 16, एक हदीस के बारे में सिर्फ 16 किताबों के, और भी ये तलाश करें तो मेरे पास जितना है मैंने अपना सरमाया बयान किया, उलमा का नहीं किया है। बोलना छोड़ दो, बरेलवी जाहिल होते हैं, तुम जाहिल होते हो, तुमको खुद नहीं पता होता किस किताब में कौन सी हदीस है, तुमको सिर्फ रफ़दैन की हदीस मालूम है बस, उससे ज्यादा नहीं मालूम। तो ये मुझ जैसा तालिब इल्म जो कि आलिम भी नहीं है, मैं बारह कहता हूँ मैं आलिम नहीं हूँ, मदरसे का फारिग नहीं हूँ, मुझ जैसा ज़ईफ़ुल इल्म 16 किताबें दिखा सकता है, तो हमारे मौलवी के पास तो जाना ही मत, 1600 हवाले ना दे दे, फिर जाना ही मत, बस अपनी रुमाल अपने सर पर डाल के रखोगे, हमें अक्ल नहीं है, बस उससे ज़्यादा नहीं है। अब आगे बढ़िए, तौसीफ रहमान के एक और एतराज़ सुनिए। अब इस हदीस में ये भी आया या मोहम्मद या रसूलुल्लाह कहा उन्होंने, हम भी कहते या रसूलुल्लाह किसनी, या रसूलुल्लाह अल मदद, ये भी शिरक है इनके यहाँ। चलिए सुनिए इनसे, दुआ इबादत है, या अल्लाह मदद अल्लाह की इबादत है, और या गौस मदद गौस की इबादत है, अब्दुल कादिर जिलानी की इबादत है, या मदद अली की इबादत है, या रसूलुल्लाह मदद मोहम्मद करीम की इबादत, या रसूलुल्लाह इबादत है रसूलुल्लाह की, या इबादत है, याद रखिए जुमला तौसीफ रहमान का, या कहना इबादत है, या रसूलुल्लाह का अल्लाह के रसूल की इबादत है, या अली कहा अली की इबादत है, और ये बोलते भी आपको कि आप अल्लाह को छोड़कर इनको पुकारते हो लिहाजा आप मुशरिक हो गए। अब आइए शिर्क का फतवा कैसे देते सुन लीजिए, तौसीफ रहमान का ये क्लिप देखिए। अल्लाह के लिए तो माताई हो जाए, अल्लाह के लिए गैरुल्लाह को पुकारने से बात आ जाए कि गैरुल्लाह को पुकारा शिर्क अकबर है, और
शिर्क अकबर करने वाला कभी अल्लाह की जन्नत में जा सकता? जब वो इनकार करेंगे ना औलिया यानी मदद के नारों का, तो फिर मुश्रिक क्या कहेगा ये भी सुनो। अल्लाह की कसम, इन कुन्ना लफी ज़लालिम मुबीन, हम तो बड़ी खुली हुई गुमराही में थे। इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, जब हमने तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर कर दिया। या अल्लाह मदद भी ठीक है, या रसूल मदद भी ठीक है, या अली मदद भी ठीक है। खुदा के लिए या कहने से बाज आ जाए, खुदा के लिए रसूलुल्लाह को पुकारने से बाज आ जाए कि गैरुल्लाह को पुकारना शिर्क अकबर है। जो शिर्क अकबर करता है वो जहन्नम में। तौसीफ रहमान के घर की खेती है, जिसको चाहे जहन्नम ही बताए, जिसको चाहे जहन्नम भेज दे, पढ़ते लिखते कुछ है नहीं। और फिर उन्होंने आयत तिलावत की, तल्लाही इन कुन्ना लफी दलालिम मुबीन इज़ नुसव्विकुम बिरब्बिल आलमीन। ये आयत बुतों के बारे में नाज़िल हुई, वो अंबिया पे फिट कर दिया उसने। इसका पोस्टमार्टम तो मैं आगे करूंगा कि बुतों वाली आयतें अंबिया पे सुनाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मौजू इतना ही रहने दे। या रसूलुल्लाह कहना किसकी इबादत है? रसूल की, ये शिर्क है। या अली मदद कहना अली की इबादत है, ये शिर्क है। आइए जरा कुरान से पूछे, कुरान तू बता क्या शिर्क है और क्या तौहीद है। पारा नंबर 26 सूरह हुजुरात आयत नंबर 2, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौली का जहरी बादिकुम लिबाद लिबादिन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो। खिताब किससे है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। ऐ मुनाफिको नहीं कहा, ऐ मोमिनो नहीं कहा, ऐ कुफारो नहीं कहा, या नास नहीं कहा, ऐ लोगों नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुके। क्या करो? ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, इस गैब बताने वाले नबी की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद मत करो। बात करने में इनसे सबकत मत करो, इनसे आगे मत जाओ। अपनी आवाज को नबी की आवाज के सामने पस्त रखो। वला तजहरू लहू बिल कौली का जहरी बादकुम लिबाद, जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, एक दूसरे से बात करते हो, वैसे हमारे नबी से ना करो, वरना क्या होगा? अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे आमाल अकारत हो जाएंगे और तुमको शऊर भी नहीं होगा। अब इस आयत की जरा तफसीर सुन लो। अब सहाबी की मानना कि इस खबीस की मानना? चलिए अब तफसीर भी वो दिखा रहा हूं, होश ठिकाने आ जाएगा। छापा भी इन्हीं लोगों ने। तफसीर इब्ने अब्बास, तनवीरुल मुग़बास मिन तफसीर इब्ने अब्बास। कौन है ये? अपने हजरत अब्बास, कुरान की तफसीर है उनकी। ये हजरत अब्बास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई है, हजरत अली के शागिर्द है। हजरत अब्बास जो हुजूर के सगे चचा है, उनके साहबजादे। और अल्लाह के नबी ने अपने ज़माने में जब ये कुरान की तफसीर लिख रहे थे, रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी, मैं कुरान की तफसीर लिखता हूँ कि आयत कब नाज़िल हुई, इस आयत का क्या मतलब है। या रसूलुल्लाह, जो कुछ मैं आपसे सुनता हूँ नकल कर देता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अब्बास अपनी तफसीर ना लिखो, मैंने तुम्हारी तफसीर को देखा, तुम ऐसी तफसीर लिखते हो कि मुझे अंदेशा है बाद वाले इसको भी कुरान ना समझ ले। ऐसी तफसीर लिखते थे हज़रत अब्बास। लिखना बंद कर दिया जनाब अब्बास ने, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, माफ करना अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत अब्बास के साहबजादे। फिर एक मरतबा रसूलुल्लाह ने आवाज़ दी, बुलाया, इब्न अब्बास, अब्दुल्ला करीब आओ, तुम्हारे कुरान की तफसीर का क्या हाल है? या रसूलुल्लाह आपने मना किया था, मैंने बंद कर दिया। फरमाया लिखो, मगर अब ये किया करो कि अल्लाह के कलाम को ऊपर रखो, अपने कलाम को नीचे रखो, दरमियान में एक लाइन हायल कर दिया करो, ताकि तुम्हारा कलाम और अल्लाह का कलाम जुदा जुदा हो जाए, पढ़ने वाला जान ले कि तुम्हारा कलाम है, यह अल्लाह का कलाम है। कहा या रसूलल्लाह आपका हुक्म है, मैं लिखता हूँ। लिखने लगे और जब अपनी तफासीर लेकर पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुल्तानुल मुफस्सिरीन, सैयदुल मुफस्सिरीन, बारगाह रिसालत से सैयदुल मुफस्सिरीन का खिताब मिला। और मौला अली से पढ़ा। किससे पढ़ा? अली शागिर्द, उस्ताद है। अली फरमाते हैं, लोगों कसम वहदहु ला शरीक की, पूरे सहाबा में सबसे ज्यादा कुरान का आलिम मैं हूं। कौन सी आयत कब नाजिल हुई, कहां नाजिल हुई, मुझसे पूछो, मैं हर आयत की तुम्हें खबर दूंगा।
एक मकाम पे फरमाया अगर मैं बिस्मिल्लाह की तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते की तफसीर 70 ऊँटों से किताबों को भर दूं, 70 ऊँट किताबों से भर दूं। उनके शागिर्द अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तफसीर इब्न अब्बास में इसी आयत की तफसीर में जरा क्या लिखते हैं, आओ जरा सहाबी का अकीदा देखो, इससे बड़ी और कोई दलील हो सकती है? वही आयत करीमा, एक मिनट, हाँ चलिए, वही आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ, उसी की तफसीर में कहते हैं का जहरी बादकुम लिबाद, ऐसे ना पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, का दुआ ओ बादकुम लिबादिन बेइस्म ही, जैसे तुम एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हो, नाम लेकर मत पुकारो हमारे नबी को, जैसे तुम कहते हो ना ऐ फारूक सुनो, ऐ फुला साहब सुनो, ऐ मजीद भाई, ऐ रहीम भाई, ऐ करीम भाई, ऐ सुल्तान भाई, जैसे तुम नाम लेकर पुकारते हो नबी को ऐ मोहम्मद कह के मत पुकारो, बल्कि नबी को कैसे पुकारो, कैसे नबी को याद करो, नबी का जिक्र कैसे करो, वलाकिन अज़महू व वक़रहू व शरफहू, नबी की अजमत के साथ, तौकीर के साथ, ताजीम के साथ पुकारो, और वक़ूलू, और नबी को यूं कहो या नबी अल्लाह व या रसूल अल्लाह व या अबुल कासिम। साहबी क्या कह रहा है, नबी को कैसे पुकारो, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। सुन्नी यही पुकारते हैं, और ये हज़रत ने फरमाया, हज़रत ने फरमाया, कहाँ कर रहे हैं यार, और कोई लक़ब नहीं मिलता तुमको? रसूल करीम कभी नहीं बोलेंगे, इनकी ज़बानों से नहीं निकलेगा, आका ने फरमाया नहीं निकलेगा, सरकार ने फरमाया नहीं निकलेगा, या रसूलुल्लाह कभी नहीं निकलेगा, हज़रत ने फरमाया। और तौसीफ रहमान क्या कह रहे हैं, या रसूलुल्लाह कहना क्या है, इबादत, और या रसूलुल्लाह कहना शिरक है, अगर शिरक है तो रूए ज़मीन का पहला मुशरिक फिर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है माज़अल्लाह। और ये तफसीर रसूल के ज़माने में लिखी गई, तो अगर या रसूलुल्लाह कहना शिरक था, या रसूलुल्लाह पुकारना शिरक हो जाता है आदमी मुशरिक, तो रसूल ने कहना चाहिए था अब्दुल्लाह तूने कौन सी तफसीर लिख दी है, तो शिरक की दावत दे रहा है तू तो उन्होंने जो लिखा, सहाबी ने लिखा, ताबई ने माना, तबे ताबई ने माना, आइम्मा ने माना, आज तक हम मान रहे हैं, और ऐसा मान रहे हैं कि फरियाद जो मती करे हाल ज़ार में मुमकिन नहीं, खैर बशर को खबर ना हो, और या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। चलिए अब एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ, बहुत बुखारी करते हैं लोग। इमाम बुखारी ने एक ही हदीस की किताब नहीं लिखी भाई, बुखारी और भी किताबें लिखी है, यह अल अदबुल मुफरद, इमाम बुखारी की छापा भी सऊदिया ने है यार। ये बड़ी ट्रेजेडी है कि छापते पूरे यही लोग हैं, क्योंकि भाई ज़बान अरबी इनकी है। हिंदुस्तान में तो उर्दू किताबें देखते हैं हम लोग, अरबी तो इन्हीं से लेना पड़ता है। इमाम बुखारी की अब्दुल्ला बिन बाज मुफ्ती आजम सऊदिया अरबिया जो थे, अभी अभी इंतकाल हुआ, नाबीना थे आंखों से, उनका कुतुब खाना था, उन्हीं के कुतुब खाने थे, मुफ्ती आजम सऊदी अरबिया के कुतुब खाने थे छपी, उन्हीं के नाम पे ये मकतब बाज जो कुतुब खाना है वहां से छपी किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। इस अदबुल मुफर्रद के अंदर इमाम बुखारी सफ़ा नंबर 217 हदीस नंबर 990। अब आइए जरा हदीस सुने, पूरी सनद बयान कर रहे हैं। हद्दसना अबू नुऐम, इमाम बुखारी कहते हैं हदीस बयान की हमसे इमाम अबू नुऐम ने, काल वो कहते हैं सना सुफियान अबी साकिन अन अब्दुर्रहमान बिन सादिन, और उन्होंने रिवायत किया अबी इसाक से, उन्होंने रिवायत किया अब्दुर्रहमान बिन साद से। काल हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न साद कहते हैं, क्या कहते हैं, खदीरत, अरे मैं एक चीज़ तो भूल ही गया यार, जो मेन चीज़ है मेरे भाई, हदीस पढ़ना शुरू कर दिया। इमाम बुखारी ने बाप कायम किया है, हाँ ये तो जान है अकीदे की, ताकि ये भी तो पता चले इमाम बुखारी कितने बड़े बरेलवी थे। अरे इमाम बुखारी बरेलवी थे भाई, रफदायन इसलिए करते थे कि वो शाफई थे, शाफई थे वो बड़े कट्टर बरेलवी थे इमाम बुखारी। चूमने की हदीस वो लाते हैं, तबर्रुक की हदीस वो लाते हैं। इस पर तो कई हफ्ते सेशन चाहिए मुझे भाई दरस बुखारी के नाम पर, कि मैं सिर्फ यही बताऊं कि इमाम बुखारी कितने बड़े बरेलवी थे। बाप कायम किया, बाप क्या होता है पता है आपको, इंग्लिश में कहते हैं चैप्टर, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, चैप्टर, साइड हेडिंग। बाप का नाम मा यक़ूलुर रजुलुन इज़ा खदिरत रजुलो,
क्या कहे वो शख्स, तर्जुमा सुने, क्या कहे वो शख्स जब उसका पैर सुन हो जाए। पैर सुन होना जिसको कहते हैं फालिज मारना, फालिज मार दे तो पैर हिलता डुलता नहीं है, जहाँ है बस पड़ा है, चुमटी लो एहसास नहीं होता, सुई चुबाओ एहसास नहीं होता, आदमी चलता फिरता नहीं है। इमाम बुखारी क्या कहते, क्या कहे वो शख्स जिसका पैर सुन हो जाए। अब बाप क्या होता है, हदीस नहीं होती। हदीस के दो हिस्से होते हैं बुनियादी। थोड़ी इस्तिलाह भी चीजें सीखे भाई, क्लिप पे तो मैं दिखाऊंगा, आज 12 भी बजेंगे तो दिखाएंगे फिर इंशाल्लाह। क्लिप देखना तो वो भी देखेंगे हम, लेकिन थोड़ी इल्म की बात भी तो सुनो यार, पता तो चले बरेलियों के पास भी कितना इल्मी सरमाया होता है यार, सीने में क्या क्या मौजज़न होता है, उंडेलने तो दो। अरे तो ये भी तो पता चले कि जब ये एक गैर आलिम इतना जानता है तो ताजु शरिया कितना जानता होगा, थोड़ा बोलने तो दो मुझे। ये भी तो पता चले भाई। हदीस के दो बुनियादी हिस्से, एक होता है हदीस का हिस्सा मतन, उसको मतन कहा जाता है, एक इस्नाद। इस्नाद क्या होती है, सनद। सनद रावियों के नाम आते हैं जो उसके रिवायत अनफुला 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 अनफुला, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने उनसे सुना, इन्होंने सुना, इसको कहा जाता है सनद। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया। अब ये जो यहां से शुरू हुआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो कुछ फरमाया, ये चीज कहलाती है मतन। इस्नाद हदीस नहीं होती, मतन हदीस नहीं होती। मतन हदीस होता है, माफ कीजिएगा, इस्नाद हदीस नहीं होती। हदीस क्या होती है, जिसमें नबी का फेल बयान किया जाए, नबी का कौल बयान किया जाए, या नबी का खामोश रहना, सुकूत रहना बयान किया जाए। हदीस कौली, फेली, हदीस तकरीरी या हदीस सुकूती, तीन हदीस की किस्में। और बाब क्या होता है, मुहद्दिस का अकीदा होता है। जो अकीदा मुहद्दिस का होता है, जो लिखने वाला है उस हदीस की किताब का, वो पहले एक बाब लिखता है और बताता है कि ये मेरा अकीदा है, और उस अकीदे की दलील क्या है, उस अकीदे की दलील ये हदीस है जो उसके नीचे मैं ला रहा हूं। तो बाब अकीदा, तो मुहद्दिस का अकीदा, बाब चैप्टर मुहद्दिस का अकीदा। तो इमाम बुखारी का अकीदा क्या, लोगों मेरा अकीदा ये है कि जब तुम्हारा पैर सुन हो जाए तो तुम्हें इलाज क्या करना चाहिए, आओ मैं तुम्हें इलाज दे रहा हूं। अब इमाम बुखारी इलाज दे रहे हैं, जरा सुनिए क्या इलाज दे रहे हैं। कहते इलाज ये है कि हद्दसना अबू नुऐम, इलाज हमें बताया इमाम अबू नुऐम ने, हद्दसना सुफयान अन अबी साकिन, इलाज उन्होंने बताया, हजरत सुना उन्होंने अबी इसाक से, अन अब्दुर्रहमान बिन सादिन, और अब्दुर्रहमान बिन साद इसको रिवायत करते हैं, काल वो कहते हैं खदीरत रजुलु इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न उमर जो हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के जलील कद्र सहाबी बेटे हैं, गज़वा ओहद में भी शरीक थे, मुतअद्दिद गज़वात में शरीक रहे, जलील कद्र सहाबी, अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा हदीसों के लिखने वाले, सबसे ज्यादा हदीसों के बयान करने वाले, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के सबसे चहीते बेटे, रसूलुल्लाह के जलील कद्र सहाबी। रावी कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का पैर सुन हो गया, फालिज मार दिया, पैर ने हिलता डुलता नहीं था, चल फिर नहीं सकते थे। फ़क़ाला लहू रजूलुन, एक शख्स उनके पास आया, आने वाला शख्स भी सहाबी है, और उस शख्स ने आकर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा, अज़कुर हब्बन नास इलैका, उस शख्स को पुकारिए, उस जात को निदा दीजिए, उससे इस्तिगासा कीजिए, उससे मदद तलब कीजिए जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जो उसको सबसे ज्यादा चाहते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या कहा, हदीस के अल्फाज है, फ़क़ाला या मुहम्मद, उन्होंने निदा की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद कीजिए। या हुर्फ निदा और इस्तिगासा के लिए आता है, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया, या जब अरबी में आता है तो उसका मतलब होता है मदद, ये अरबी का कायदा है। या अल्लाह कहते हैं, अल्लाह मदद, या के मैं नहीं मदद, हुर्फ निदा, निदा देना मदद के लिए, या अल्लाह, अल्लाह मदद, या मोहम्मद, ए मोहम्मद मदद। रावी कहते हैं उन्होंने पुकारा और पैर ऐसा अच्छा हुआ जैसे कभी सुन हुआ ही नहीं था। इमाम बुखारी ने लाया और इमाम बुखारी ने बताया, देखो इलाज बता रहा हूं मैं, अब बताओ मैं कट्टर बरेलवी हूं कि नहीं हूं।
اور یہ یا محمد کہنا اللہ کے رسول کی عبادت، یا رسول اللہ کہنا اللہ کے رسول کی عبادت، یا علی کہنا علی کی عبادت، اور عبادت غیر اللہ کی شرک ہے، خدا کے لیے شرک سے باز آ جائے۔ یہ صحابی سب مشرک تھے، تم ایک توحید کے ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہو۔ آئیے اس حدیث کو اور کن کن لوگوں نے لکھا سن لیجئے۔ سب سے پہلے سن لے، بعض روایتوں میں یا محمد ابھی آیا ہے، یہ بھی عرض کر دوں۔ اس حدیث کے بارے میں امام منذری نے، اسماء و رجال کے امام، جرح و تعدیل کے امام، الترغیب والترہیب میں فرمایا والحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے بھائی یہ حدیث۔ امام ابن سعد نے الطبقات جلد نمبر 4 صفحہ 154 پر اس حدیث کو لکھا۔ امام قاضی عیاض نے الشفا جلد نمبر 2 صفحہ 23 پر لکھا۔ امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض جلد 3 صفحہ 355 پر لکھا۔ اور امام نووی نے جو مسلم شریف کے شارح ہیں، مسلم کی شرح بڑی مشہور جس کو سعودیہ بھی چھاپتا ہے، امام نووی نے الاذکار جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر صفحہ 271 پر لکھا۔ اور امام محمد بن محمد جزری شافعی جو ابن تیمیہ کے شیخوں میں ہے، علامہ ابن تیمیہ کے استادوں میں ہیں، امام محمد بن محمد جزری شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے الحسن والحسین صفحہ 30 پر اس حدیث کو لکھا۔ اور آئیے ایک کتاب جو ابھی حال ہی میں سعودیہ سے چھپی ہے، البانی صاحب کی تخریج کے ساتھ۔ تخریج سمجھتا ہے آپ کو؟ سمجھا دیتا ہوں۔ تخریج یہ ہوتی ہے جیسے ایک حدیث کی کتاب ہے، مثال کے طور پہ یہ امام بخاری کی کتاب ہے، مان لیجئے ادب المفرد۔ اب اس کتاب کو میں چھاپ رہا ہوں تو میں اس کی تخریج بھی کرتا ہوں۔ تخریج یہ کرتا ہوں کہ امام بخاری کی وہ حدیث، اور پھر حاشیے میں لکھتا ہوں کہ یہی حدیث جو امام بخاری نے لکھی اور کن کن محدثوں نے لکھا، پھر یہ حدیث سند کے اعتبار سے کیسی ہے، روایت کے اعتبار سے کیسی ہے، اس پر میں گفتگو کرتا ہوں، تحریر کرتا ہوں، تحقیق لکھتا ہوں، اس کو کہتے ہیں تخریج۔ البانی ان کے ابھی حال کے بہت بڑے علامہ کہلاتے ہیں، ان کی تخریج کے ساتھ۔ کتاب کس کی ہے؟ کتاب کا نام ہے فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام اسماعیل بن اسحاق جن کی ولادت 199 ہجری، ابھی کون سا چل رہا ہے؟ 1433 کا 34 چلیے راؤنڈ فگر پکڑے 1300، 199 200 ہجری، یعنی آج سے 1100 سال پہلے کے امام۔ کب کے امام؟ 1100 سال، آج کے نہیں ہے جب مولانا بریلی کے پیدا ہوئے تھے، اس کے۔ چھاپا تم نے دارالعلم بمبئی سے چھپی، آپ کے بمبئی سے، ترجمہ اور تخریج کے ساتھ امام نصر الدین البانی، درود کی فضیلت اردو نام رکھا امام اسماعیل بن اسحاق قاضی۔ آئیے اسی کتاب کا ایک صفحہ دیکھیں، صفحہ نمبر 63، اس میں حدیث لکھتے ہیں حضرت امام جو ہے کیا نام ہے اسماعیل بن اسحاق قاضی کہتے ہیں، حدیث نمبر 99 ہے ان کا اس کتاب کا۔ عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں میں نے ابن عمر کو دیکھا جب وہ سفر سے آتے تو مسجد میں جاتے اور کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہی تو سنی کہتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بدعت شرک یہ تو سب صحابہ کرتے تھے بھائی۔ پھر یہی نہیں، ارے بھائی وہ تم یہ کیوں پڑھتے ہو اعلیٰ حضرت کی شوکت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم والنکا متقا والنکا، غوث اعظم کی عظمت پہ سلام تو نبی پہ پڑھنا چاہیے۔ اچھا بڑے محقق کے دور آئے آپ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، یہ اعلیٰ حضرت نبی تھے کیا؟ نہیں نبی نہیں تھے، صالحین تھے۔ اعلیٰ حضرت صالحین میں ہیں، اولیاء میں ہیں، غوث اعظم اولیاء میں ہیں۔ نبی معراج پر گئے، رب کائنات نے کہا محبوب کیا لائے ہو؟ ملنے آئے ہو ملاقات کے لیے؟ رب کائنات التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، سب تیرے ہی لیے ہے، یہ لایا ہوں تحفے میں۔ اللہ نے فرمایا بہت اچھا تحفہ لائے محبوب، السلام علیکہ ایھا النبی، محبوب آپ پر سلام ہو پھر ہماری طرف سے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا پروردگار سے مجھ پہ نہیں، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، میری امت کے صالحین پر بھی سلام ہو۔ تو نبی نے معراج کی رات عرش بری سے پرے لامقام صالحین کو سلام کیا، اور رب نے نہیں فرمایا کہ محبوب صالحین کو سلام نہیں بھیج سکتے۔ تو جب نبی صالحین کو بھیجتے ہیں تو جب ہم نے صالحین کو بھیجا تو نبی کی سنت کو ادا کیا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت پر لاکھوں سلام، غوث اعظم پر لاکھوں سلام،
गरीब नवाज पर लाखों सलाम। हमारा नबी सालिहीन को मेराज में सलाम भेज चुका। अब यहाँ वह हदीस सुन ले, सिर्फ नबी को सलाम नहीं करते थे अब्दुल्ला इब्न उमर। स्कैन पे दिखाएं शकील भाई, माशाल्लाह दीन इस्लाम चलाते हैं ये, और दीन इस्लाम पे बड़ी तकरीरें मेरी आती है, सुने आप। यहाँ नहीं आता है तो लगाइए, जिस घर में केबल जाएंगे ना इनका बेड़ा गर्क होता जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और उसके बाद क्या कहते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर, अस्सलामु अला अबी बकर, ऐ अबू बकर आप पर सलाम, अस्सलामु अला अबी, ऐ मेरे बाप उमर आप पर भी सलाम। और फिर सलाम ही नहीं करते, 2 रकात नमाज पढ़ते। कहां पढ़ते? रोज़े रसूल के पास, नबी की कब्र मुबारक के पास। और दूसरी रिवायत लिखते हैं, रिवायत नंबर 100 नाफे से मरवी है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जब सफर से आते तो मस्जिद में जाते और फिर नबी की कब्र के पास जाते और कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब इसके नीचे अलबानी जो इनके बहुत बड़े शेखुल हदीस है वो क्या कहते? इसकी सनद मौकूफ और सही है। मौकूफ किसे कहते हैं? जिसकी सनद सहाबी तक पहुंचे। और मरफू किसे कहते हैं? जिसकी सनद रसूलुल्लाह तक पहुंचे। ये सनद सहाबी तक है, अब्दुल्ला इब्न उमर का अमल है जिसमें सहाबी का अमल बताया जाए वह हदीस मौकूफ, जिसमें नबी का अमल बताया जाए वह हदीस मरफू। तो कहा ये सनद मौकूफ है और सही है। सुफियान से मुराद इब्न उयैना है और अली से मुराद इब्न अब्दुल्ला बिन मदाइनी है। ये 2 रावियों पर बात कर रहे हैं। ये सही भी हदीस भी सही है, लिखा तुमने, छापा तुमने। तो एक तरफ तुम्हारे अलबानी बोलते हैं इसकी हदीस सही, और जिसकी किताब छापते वो इमाम हदीस नकल करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर या रसूलुल्लाह कहते थे। और दूसरी तरफ तौसीफ रहमान साहब कह रहे हैं या रसूलुल्लाह कहना नबी की इबादत है और ये शिरक है। तो किसको माने भाई? अब एक किताब मैं बड़ी प्यारी दिखा रहा हूं, ये तबे ताबई ये लिखने वाले कौन है? लिखने वाले इमाम वाकदी, बहुत वक्त के इमाम है, फुतुश शाम। इन्होंने किताब लिखी मुल्क शाम की जो फतह हुई थी हजरत उमर के ज़माने में, उसके ताल्लुक से पूरी हदीसों को जमा कर दिया इसमें। इमाम वाकदी की विलादत पैदाइश 130 हिजरी, कितने साल पहले के? 1150 साल पहले के। 130 हिजरी में विलादत हुई इमाम वाकदी की, तबे ताबई है। और उनका विसाल 207 हिजरी में। जंग यरमुक का जिक्र करते हैं। जंग यरमुक जो फारूक आजम के ज़माने में हुई, साहबा इकराम गए और उस फौज के सिपा सालार थे हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खालिद इब्न वलीद ने एक सहाबा की टोली को भेजा, उसमें हजरत शरजिल बिल हुस्ना एक साहब रसूल है, वो उस टोली की, उस ग्रोह की क़यादत कर रहे थे। दुश्मनों को मालूम हुआ ये किसी मकसद से जा रहे हैं, कुछ सामान वगैरह फराहम करना था, कुछ सिपाहियों के खाने पीने का इंतजाम। दुश्मन तादाद में ज़्यादा था, ये कम थे। चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा और इन पर हमला कर दिया। साहबा इकराम की जमात कलील, मुख्तसर, दुश्मन ज़्यादा। अब इन्होंने देखा कि मुकाबले की ताब नहीं है, मुकाबला भारी है, हम तादाद में कम, दुश्मन तादाद में ज़्यादा। कैस बिन हुबैरा एक सहाबी रसूल है। अब इमाम वाकदी रिवायत करते हैं कि जब उन्होंने देखा दुश्मन हावी हो रहा है तो उन्होंने क्या किया? आइए ज़रा हदीस के अल्फाज अब पढ़ता हूँ। उन्होंने मैदान यरमुक से पुकारा, मैदान यरमुक, जंग यरमुक जाओ और ये रसूलुल्लाह मदीना शरीफ में आराम फरमा रहे, कब्र मुबारक में दौरे खिलाफत उमर है, रसूल का विसाल हुए, एक ज़माना हो गया। बज़ाहिर हयात नहीं है, बज़ाहिर हमारी आंखों से पोशीदा है, मगर जिंदा नबी अपनी कब्र में मौजूद। जंग यरमुक हजारों मील की दूरी पर, वहां से हजरत शरजिल बिल हुस्ना साहबी रसूल, जलील कद्र साहबी रसूल और हजरत कैस बिन हुबैरा पुकारते हैं, या रसूलल्लाही इंजिला, आए अल्लाह की मदद। किसको कह रहे हैं? रसूल को कह रहे हैं, आए अल्लाह की मदद नाजिल हो, या मोहम्मदो, या मोहम्मदो, या मंसूरो, आए मोहम्मद, आए हमारे मददगार, उम्मता हो, उम्मता, अपनी उम्मत की खबर लीजिए, अपनी उम्मत की खबर लीजिए। इमाम वाकदी भी मुशरिक, शरजिल बिल हुस्ना भी मुशरिक, कैस बिन हुबैरा भी मुशरिक, खालिद इब्न वलीद भी मुशरिक। अरे कोई बचा है तुम्हारे शिरक की भट्टी से? जुम्मा जुम्मा 8 दिन के निकले ये लोग। मैंने तो 12 तकरीरों में चैलेंज किया, अगर
दूध अगर वाकई माओ का पिया हो यार, भैंस का नहीं पिया है तुम लोगों ने, भैंस का नहीं पिया, माँ का पिया है और अपनी माँ के लाल कहलाते हो, तो सिद्दीक हसन भोपाली से पहले कोई गैर मुकल्लिद बता दो मुझे हिंदुस्तान में, भोपाल के अंदर। सनाउल्लाह अमृतसरी से अमृतसर में पहले कोई गैर मुकल्लिद बता दो मुझे। नवाब सिद्दीक हसन, नवाब वहीदुज्जमा से पहले कोई मुझे गैर मुकल्लिद बता दो हिंदुस्तान में। तारीख खंगाल डालो, इनकी एक मस्जिद नहीं मिलेंगी, एक इनका गैर मुकल्लिद नहीं मिलेगा। और मैंने तकरीर में बारहा कहा, आज भी कह देता हूं, नए लोग हैं, वो खैर का जमाना, ये अंग्रेजों के जमाने की इजाद है। नजीर हुसैन दहलवी है इस फिरके का बानी। अंग्रेज 1857 में इसने इस फिरके की बुनियाद रखी, वरना 1857 से पहले तुम अपना वजूद हिंदुस्तान में बताओ। अगर तुम बता दोगे जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। बताओ अपना वजूद, कोई मस्जिद बताओ 1857 से पहले हिंदुस्तान में कोई तुम्हारी मस्जिद हो तो बताओ। जुम्मा 8 दिन का फिरका, नबी ने कहा था 73 होंगे, उन्हीं में से निकले हो। और हम कब से हैं? जब से गरीब नवाज का गुंबद है, जब से गौसे आजम का गुंबद है, जब से नबी पाक की रोजे अनवर है, हम तब से हैं। कल भी हम गरीब नवाज के वफादार थे, आज भी गरीब नवाज के वफादार हैं। तो हम तो तब से हैं। इससे पहले वजूद बताओ आप। संजीदगी से बोल रहा हूं, लड़ नहीं रहा हूं भाई, बताओ वजूद। नहीं है वजूद, एक गैर मुकल्लिद पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। निजामुद्दीन औलिया के खलीफा और मुरीद है हजरत अमीर खुसरो। अपने शेर में कहते हैं, हिंदुस्तान तेरा क्या कहना, ऐसी जमीन है हिंदुस्तान की, कितनी सुन्नी खेज जमीन है, कैसे अहले सुन्नत का मज़हब यहाँ फलता और फूलता हुआ नजर आता है कि